Jai Vigyan everyone, how are you all? Hope all of you are enjoying and safe at your homes. चलिए, as always, before starting, we all need to recite the shloka. So be ready for the shloka. सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तु ते. Om Shanti Shanti Shanti. Jai Vigyan everyone. As you know, we have already completed till chapter number 7. So today we need to start our chapter number 8, that is the work of UNO. In our previous chapter, chapter number 7, we have discussed about the birth of UN. How the UN, United Nations, the organization which work for the वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि पूरे वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी का काम करती है पूरे वर्ल्ड के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था, हाउ इट वाज केम टू इन एग्जिस्टेंस, वो कैसे उसका स्टार्टअप हुआ था, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस चैप्टर. Now in this chapter we will discuss about the work of the UNO. How does it work? वो अपना काम कैसे करती है? In this we will discuss mainly two topics. First is the major organs of UN and their work. कि UN के जो मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और वो कैसे अपना काम करते हैं, उन ऑर्गन्स का किस ऑर्गन का क्या काम है. Second, we will discuss the specialized agencies of UN. UN have some specialized agencies about which we will discuss in this chapter also. So first of all, we will start with the major organs of the UN. But before that, very fast, we will do the gear up. See, you have given the flag of few countries. You need to identify and tick the flag of the country or countries which are not a permanent member of the Security Council. That question actually you can answer might be after we will discuss about the Security Council, but still I will tell you. Security Council has 5 permanent members. जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो यूएन का एक ऑर्गन है और इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं. दे आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम, दैट इज यूके. तो ये जो 5 है ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं. यहाँ पर आपको 4 फ्लैग्स गिवन है. यू नीड टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन से वो कंट्रीज हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर्स नहीं हैं. द फर्स्ट फ्लैग विच इज गिवन इज ऑफ चाइना. फर्स्ट फ्लैग जो आपको रेड कलर का है ये चाइना का है एंड चाइना इज अ परमानेंट मेंबर, सो यू डोंट हैव टू टिक दिस. Second flag is of USA. USA is also a permanent member of Security Council. Third, as everyone knows, it is of India's. So you need to tick this because India is not the permanent member of UN. And the next is Pakistan. Pakistan also is not a permanent member of UN. Now first of all we will discuss about the major organs of the UN. हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेजर ऑर्गन्स. एज जैसे कि हमारी बॉडी है, वी हैव मैनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी उन ऑर्गन्स की हेल्प से वर्क करती है. अगर हमारी बॉडी के ये पार्ट्स नहीं होंगे, ऑर्गन्स नहीं होंगे, तो हम मूव भी नहीं कर सकते, हमारी बॉडी कोई काम नहीं कर सकती. सेम एज यूएन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 6 ऑर्गन्स हैं विच यू कैन कंसीडर एज द बॉडी पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके 6 ऑर्गन्स हैं और इन्हीं 6 ऑर्गन्स के बेसिस पर ये काम करती है. इन्हीं 6 ऑर्गन्स की हेल्प से ये यूएन काम करती है. The UN is a large organization that provides scientific and technical expertise in various fields like agriculture, health, education. The UN has following 6 organs. जो यूएन है वो हर लेवल पे वर्क करती है. वर्ल्ड पीस का काम करती है, वर्ल्ड सिक्योरिटी का काम करती है, टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करती है, साइंटिफिक हेल्प प्रोवाइड करती है, या फिर सॉरी हेल्थ इश्यू से रिलेटेड वर्क करती है,
सिक्योरिटी से रिलेटेड वर्क करती है. सो बहुत सारे वर्क हैं जो विच आर बीइंग डन बाय द यूएन. यूएन work with the help of these 6 organs. First one is General Assembly, second Security Council, third Economic and Social Council, which also can be considered as ECOSOC, fourth Trusteeship Council, fifth International Court of Justice, which can also be termed as ICJ, and the last one is the Secretariat. ये जो 6 हैं organ, these are the most important part of UN because UN work on behalf of these organs. UN इन organ के behalf पर ही काम करता है. So you need to learn the name of all these 6 organs. This is very important question. Now we will discuss about these major organs and their role in the UN, कि वो organs क्या काम करते हैं. First of all, we will discuss about General Assembly. It is the main body of the UN where the representatives of all member countries sit and discuss matters of international concern. So General Assembly, as the name suggests, General, तो ये General होती है. Assembly की एक Assembly की तरह होती है जहाँ पर सभी एक साथ गैदर होते हैं. So General Assembly में क्या होता है, यूएन के जितने भी मेंबर कंट्रीज होते हैं सबके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर गैदर होते हैं एंड दे डिस्कस ऑन द मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. और जो भी मैटर डिसाइड करना होता है, डिस्कस करना होता है, चाहे वो हेल्थ इशू है या कोई नई पॉलिसी है, रूल्स रेगुलेशंस है या कोई न्यू इन्वेंशन है, कुछ भी जो भी डिसाइड करना होता है, जिस भी टॉपिक पर डिस्कशन करना होता है, तो दैट इज बीइंग डन इन दिस जनरल असेंबली. इट इज़ लाइक द पार्लियामेंट ऑफ यूएन. जैसे हमारी कंट्री में पार्लियामेंट होता है ना, जहाँ पर सभी जो लीडर्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, वो आपस में बैठ के सब डिस्कशन करते हैं अबाउट द कंट्री, अबाउट द मैटर्स ऑफ द कंट्री. सेम एज जो जनरल असेंबली है वो एक तरीके से वर्ल्ड का पार्लियामेंट होता है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दोज हु आर द पार्ट ऑफ यूएन, जो यूएन के पार्ट हैं, मेंबर हैं, वो सब कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एंड दे टॉक एंड डिस्कस ऑन द मैटर विच आर रिलेटेड टू द वर्ल्ड. सी यू हैव गिवन द पिक्चर ऑफ यूएन जनरल असेंबली. ऐसी होती है जनरल असेंबली जहाँ पर ये सभी मेंबर कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं एंड दे डिस्कस. द जनरल असेंबली हैज़ द पावर टू एडमिट न्यू मेंबर्स टू यूएन. अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, व्हेन द यूएन वाज बोर्न देयर वर ओनली 51 मेंबर्स. जब यूएन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तब 51 मेंबर्स थे, those who were the part of UN. But now at present we are having 193 member countries of UN. तो इन ये जो 51 से लेके 193 तक जितने भी मेंबर्स ऐड हुए हैं, these are being done by जनरल असेंबली. सो जनरल असेंबली जो है, जो पार्लियामेंट है यूएन का, that has the power to admit new members to the UN. यूएन में किसी भी नए मेंबर को अगर एडमिट करना है तो वो काम किसका होता है, जनरल असेंबली का. All the member nations have equal representation and the right to vote. जनरल असेंबली में जितने भी मेंबर्स होते हैं सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है. दैट मीन्स 1 person फॉर 1 कंट्री, एक 1 vote फॉर 1 कंट्री यू कैन से, एंड दे हैव इक्वल राइट टू वोट. दैट डजेंट मैटर कि कोई डेवलपिंग कंट्री है, वीक कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, ये चीज़ मैटर नहीं करती. ऑल members are equal and they have equal rights to vote. The first session of the General Assembly was held on 10th January 1946. ये जो UN है that was being established on 24th October 1945. उसके बाद
ये इसका स्टार्टअप हुआ, फिर धीरे धीरे इसके ऑर्गन्स बने। तो जो जनरल असेंबली की पहली असेंबली जो हुई थी, when first time members sit together and discuss about the matters, that was being done on 10th January 1946। वो 10th जनवरी 1946 को हुआ था सबसे पहले। ओके, द असेंबली मीट्स वंस इन अ ईयर। जो असेंबली है, जनरल असेंबली है, उसकी मीटिंग साल में एक बार होती है, वंस इन अ ईयर। हर साल में एक बार तो ये सारे मेंबर्स एक साथ बैठ के डिस्कशन करते ही हैं, बट अगर कभी रिक्वायरमेंट होती है तो टाइम से पहले भी इसकी असेंबली हो सकती है। एंड द सेशन रन फ्रॉम मिड सितंबर टू मिड दिसंबर। इसका जो सेशन होता है वो मिड सितंबर से लेकर मिड दिसंबर तक होता है। If there is an emergency, a special meeting can be called. That I told you कि अगर कोई इमरजेंसी है, इमीडिएट मीटिंग होना ज़रूरी है, तो टाइम से पहले भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा सकती है। The General Assembly decisions are taken by casting votes. जनरल असेंबली में जब भी किसी मैटर को डिस्कस किया जाता है तो उस मैटर के ऊपर डिसीजन कैसे लिया जाता है? विद द हेल्प ऑफ वोट्स। जितने भी मेंबर्स होते हैं वो उस मैटर से रिलेटेड वोट करते हैं। देन आफ्टर काउंटिंग द वोट, डिसीजन इज टेकन। ईच मेंबर कंट्री, वेदर बिग और स्मॉल, हैज ओनली वन वोट। दैट तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हर एक कंट्री का एक ही वोट होता है। दैट डजेंट मैटर कि वो कोई बड़ी कंट्री है, कोई छोटी कंट्री है, कोई डेवलप्ड है, कोई वीक है, दैट डजेंट मैटर। ईच मेंबर कंट्री हैज वन वोट। द जनरल असेंबली इलेक्ट्स इट्स प्रेसिडेंट एवरी ईयर। जैसे हमारी जो पार्लियामेंट होती है वहां पर एक स्पीकर होता है, द पर्सन हु लिसन एवरी वन। सेम एज जो जनरल असेंबली है उसका एक लीडर होता है, सॉरी, विच इज कॉल्ड इट्स प्रेसिडेंट। इसका प्रेसिडेंट हर साल इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट का मतलब होता है उन्हीं मेंबर्स के बीच में से इलेक्ट किया जाता है, चुनना। The General Assembly has the right to discuss and make recommendations on any issue covered in the UN's Charter. UN के चार्टर में जितने भी मैटर्स दिए हैं, जनरल असेंबली उनमें से किसी भी मैटर पे डिस्कस कर सकती है। इट हैज द राइट टू डिस्कस ऑन एनी मैटर that is being given in the UN Charter. Charter, I have already told you, that is a document which explain about the organization. It elects the member of other UN bodies. तो UN की जो दूसरी बॉडीज हैं, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ICJ है, सेक्रेटरीट है, इन सब के लिए भी मेंबर्स को इलेक्ट करने का काम जनरल असेंबली करती है। द जनरल असेंबली मेक्स द बजट ऑफ UN। यूएन का जो बजट बनाया जाता है पूरे साल का, एक्सपेंसेस का, इनकम का, दैट इज बीइंग डन बाय जनरल असेंबली। Reviews report of the other organs of UN and appoints non-permanent member of the Security Council। जो बाकी के जितने भी ऑर्गन्स हैं यूएन के, उन सब की रिपोर्ट्स को रिव्यू करती है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी काउंसिल है, which has 5 permanent member, permanent है, that means they are non changeable। तो परमानेंट मेंबर्स के अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर है, विच आर बीइंग चेंज्ड आफ्टर एवरी 2 years, जिन्हें हर 2 साल के बाद चेंज कर दिया जाता है, तो उन मेंबर्स को अपॉइंट करने का काम, इलेक्ट करने का काम भी जनरल असेंबली का ही होता है। इट ऑल्सो डिस्कसेस इश्यूज अफेक्टिंग वर्ल्ड पीस, as because UN work for the world peace and security। तो वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स को भी जनरल असेंबली में डिस्कस किया जाता है। Now you have given one info pebble on your right hand side, that is in 1953 Mrs. Vijaya Lakshmi Pandit from India was elected as the president of the General Assembly
and she was a sister of Pandit Jawaharlal Nehru. तो मिसेस विजया लक्ष्मी पंडित जी को 1953 में जनरल असेंबली का जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, एंड शी वाज द सिस्टर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी. वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर थी. यू हैव ऑल्सो गिवन द पिक्चर ऑफ मिसेस विजया लक्ष्मी पंडित. That is infopebble. As I already told you many times that infopebbles are very important because they provide us some extra informations that is very important. Now we have completed the General Assembly, so we will discuss the second organ of UN, that is Security Council, which you can say the most powerful and most important organ, as because कि UN का जो काम है, UN की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसका सबसे बड़ा रीज़न था वर्ल्ड की सिक्योरिटी एंड पीस, कि वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन ना हो. तो उस काम को करने का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी काउंसिल की होती है. ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव गिवन द सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग. सिक्योरिटी काउंसिल का जो ऑर्गन है सॉरी वहां पर जो मेंबर्स हैं वो किस पोजीशन में होते हैं, उसका जो बिल्डिंग है दैट यू हैव गिवन in this picture. Now let's discuss Security Council. The Security Council is the most powerful organ of the UN. ये UN का सबसे ज़्यादा powerful organ है. It has 5 permanent members and 10 non-permanent members. That तो I have already told you कि Security Council में 5 permanent member हैं जो UN के permanent member हैं जो कि कभी change नहीं होते. उसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो हर 2 साल के बाद चेंज किए जाते हैं. द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी 2 years बाय द जनरल असेंबली फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स. एज बिकॉज कि यूएन के जितने भी मेंबर हैं वो जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं, तो जनरल असेंबली के सभी मेंबर्स में से जनरल असेंबली ही इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2 years के लिए इलेक्ट करती है. रिमेंबर वन थिंग किड्स, दे आर इलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड. उन्हें सेलेक्ट नहीं किया जाता अपनी मर्जी से कि हाँ चलो इस बार इंडिया को ले लिया, रशिया नहीं सॉरी रशिया तो परमानेंट मेंबर है, किसी और कंट्री को ले लिया, बट ये इलेक्ट होते हैं, वोटिंग के बेसिस पर इन्हें इलेक्ट किया जाता है. ओके, द परमानेंट members are the United States of America, Russia, France, the United Kingdom and China. ये जो 5 है ये परमानेंट मेंबर्स होते हैं. यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना, ये 5 जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है जो कभी चेंज नहीं होते. The 5 permanent members have the veto power. ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास एक स्पेशल पावर होती है दैट इज कॉल्ड वीटो पावर. अब वीटो पावर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि सिक्योरिटी काउंसिल में किसी सिक्योरिटी मैटर पे डिस्कशन चल रही है और इन 5 परमानेंट मेंबर में से कोई भी एक मेंबर अगर इस डिसीजन के फेवर में नहीं है तो वो अपनी वीटो पावर का यूज करके उस डिसीजन को स्टॉप कर सकता है. ये 5 मेंबर्स अपनी वीटो पावर यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी डिस्कशन चल रहा है, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, बट इन 5 में से कोई भी एक कंट्री को लगता है कि दिस शुड नॉट बी हैपन, तो वो कंट्री, वो परमानेंट मेंबर अपनी वीटो पावर यूज करके उस डिसीजन को एट दैट टाइम के लिए स्टॉप कर सकता है. उसके बाद में लेटर ऑन उस मैटर पर वापस से रीडिस्कशन करके फिर डिसीजन लिया जाएगा. अगर कंट्री ने वीटो पावर, मेंबर ने वीटो पावर यूज किया तो उसके बाद डिसीजन नहीं लिया जाएगा, उस डिसीजन को वहीं की वहीं स्टॉप कर दिया जाता है. दैट इज कॉल्ड वीटो पावर. दैट मीन्स दीज कंट्री हैव द पावर टू स्टॉप एनी डिसीजन एट द पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, दिस इज वीटो पावर. The Security Council held its first session in 1946. Security Council का जो पहला सेशन है वो 1946 में हुआ था. It is responsible for the restoration
and maintenance of the international peace and security. एज बिकॉज की सिक्योरिटी काउंसिल है तो इसका काम क्या है, वर्ल्ड में पीस, शांति और सिक्योरिटी, सुरक्षा को प्रोवाइड करना. Whenever there is a conflict in the world, the Security Council tries to resolve it, and whenever needed, it sends its peacekeeping force to restore peace. जब भी वर्ल्ड में कोई कंफ्लिक्ट होता है, कोई कंट्रीज के बीच में कंफ्लिक्ट होता है, तो उसको सॉल्व करने का काम किसका होता है, सिक्योरिटी काउंसिल का. इस काम के लिए वो अपनी पीस कीपिंग फोर्स को यूज कर सकती है. इट हैज इट्स स्पेशल पीस कीपिंग फोर्स, जहां पर इसकी मेंबर कंट्रीज के ही फोर्सेस होते हैं. इसकी अपनी एक पीस कीपिंग फोर्स मतलब शांति बनाए रखने वाली फोर्स होती है, विच कैन बी यूज्ड at any point of time whenever needed. That is Security Council. Now next we discuss the third organ, that is Economic and Social Council, which can also be termed as ECOSOC. Same as you have given the ECOSOC picture, that means Economic and Security Council की जो assembly होती है जहां पर वो मेंबर्स बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, द प्लेस यू हैव गिवन. ओके, देयर आर 54 मेंबर कंट्रीज इन इकोसॉक. इकोसॉक की जो टोटल मेंबर्स है वो 54 है. दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि जनरल असेंबली के कितने मेंबर्स होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं, कितने परमानेंट है, कितने नॉन परमानेंट है, इकोसॉक के कितने हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल के कितने हैं. तो ये सबके मेंबर्स, परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स भी ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं. ओके, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कोऑर्डिनेट्स द इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क ऑफ यूएन. तो एज द नेम सजेस्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो वो क्या करती है, यूएन का जितना भी इकोनॉमिक और सोशल वर्क होता है ना, दैट इज बीइंग डन बाय द इकोसॉक. ECOSOC studies and recommends actions on issues such as human rights, equality of women, education and medical facilities. इसका क्या काम होता है, ये पूरे वर्ल्ड में रिसर्च करती है इन मैटर्स पर और इन इश्यूज पर एक्शंस भी लेती है, हेल्प भी प्रोवाइड करती है. कौन कौन सी इश्यूज पर, ह्यूमन राइट्स, अगर कहीं भी ह्यूमन राइट्स को वायोलेट किया जाता है तो वहां पर इकोसॉक वर्क करती है. इक्वालिटी ऑफ वुमेन, वुमेन की इक्वालिटी के लिए इकोसॉक वर्क करती है. एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए इकोसॉक वर्क करती है. तो ये सारे जो फंक्शन है विच आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एंड द सोसाइटी, सोशल वर्क, सो ये सब काम इकोसॉक के अंडर आते हैं. It is elected by the General Assembly for a 3 years term. ये जो 54 members है इन्हें भी General Assembly ही elect करती है, but for 3 years. It functions through various committees and commissions. अब इतना सारा काम है, ह्यूमन राइट्स का, वुमेन एम्पावरमेंट का, फिर एजुकेशन का, फिर मेडिकल फैसिलिटीज का, इकोनॉमी का, सोशल वर्क है. तो ये सारा काम, इसके लिए बहुत सारे कमिटीज और कमीशंस होते हैं जिनके थ्रू ये वर्क करते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट ऑर्गन, दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल. The Trusteeship Council was established in 1945. इसे 1945 में establish किया गया था. It was created to look after the transition of colonies into independent countries. इसे क्यों बनाया गया था? इस काउंसिल का काम था कि वो जो कंट्रीज हैं जो किसी के कंट्रोल में हैं, which are under the control of some other country, उन्हें इंडिपेंडेंट कंट्री में कन्वर्ट करवाना ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम है. दैट मीन्स जो आप कह सकते हैं विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर, उन्हें फ्री करवाना. जो कॉलोनीज हैं, जो कंट्री किसी दूसरी कंट्री की कॉलोनी बन गई है, उसके कंट्रोल में है, उसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री में कन्वर्ट करना, उसे फ्री करना was the work of Trusteeship Council.
At that time, there were 11 such colonies that have now become independent. जब ट्रस्टीशिप काउंसिल को फॉर्म किया गया था उस टाइम पूरे वर्ल्ड में 11 ऐसी कंट्रीज थी जो किसी और के कंट्रोल में थी। 1946 में जब इसे फॉर्म किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, तब 11 ऐसी कंट्रीज थी। बट विद द वर्क ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल all these countries are free now. They are independent now. This organ suspended its work on 1st November 1994 after completing its task. क्योंकि इस organ का task क्या था? जो countries डिपेंडेंट है दूसरों पर, जो किसी की कॉलोनी बन गई है, किसी के कंट्रोल में है, उन कंट्रीज को फ्री करवाना। जब ये ऑर्गेन एस्टेब्लिश हुआ था तो ऐसी 11 कंट्रीज थी और इन सारी 11 कंट्रीज को ट्रस्टीशिप काउंसिल ने इंडिपेंडेंट कंट्रीज में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका टास्क कंप्लीट हो गया। सो आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स टास्क इट वाज सस्पेंडेड ऑन 1st November 1994। 1st November 1994 को ये सस्पेंड हो गई। दैट मीन्स अब ये ऑर्गन का कोई वर्क नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि ये ऑर्गन खत्म हो चुका है, बट आगे भी अगर ऐसा कभी होता है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री की कॉलोनी बन जाती है या कोई दूसरी कंट्री किसी कंट्री को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, देन अगेन ट्रस्टीशिप काउंसिल कैन वर्क, इट कैन हैव मीटिंग and it can do its work. Okay, now the next organ is the International Court of Justice, which you can also call as ICJ or the World Court, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का कोर्ट है जहां पर वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, ठीक, तो हम लोकल कोर्ट में जा सकते हैं। दो स्टेट्स की प्रॉब्लम है तो नेशनल कोर्ट में जा सकते हैं। बट अगर प्रॉब्लम दो कंट्रीज के बीच में है, देन वेयर विल वी गो? एट दैट टाइम दैट वर्ल्ड कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, दैट वर्क्स। लेट्स डिस्कस अबाउट द ICJ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट। ICJ को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। इट इज द लीगल कोर्ट ऑफ द UN। ये UN की लीगल कोर्ट है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ ICJ इज एट द हेग्यू, नीदरलैंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड के हेग्यू में है। ICJ was established in June 1945 and started working by April 1946। इसे कब एस्टेब्लिश किया गया था? जून 1945 में, और इसने एक्चुअली वर्क कब स्टार्ट किया? अप्रैल 1946 में। It has 15 judges which are elected by Security Council and General Assembly for a period of 9 years। ICJ के जो मेंबर्स हैं वो उसमें 15 जज होते हैं जो कि 9 इयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं बाय सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली। दोनों मिलके इसके जजेस को इलेक्ट करते हैं। दिस कोर्ट हियर्स डिस्प्यूट्स अमंग द मेंबर्स ऑफ UN। अगर UN के मेंबर्स के बीच में ही कोई इशू है, दो मेंबर कंट्रीज के बीच में कुछ इशू है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स को वर्ल्ड कोर्ट और ICJ में सॉल्व किए जाते हैं। द ICJ एडवाइजेज मेंबर कंट्रीज ऑन मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। वो इंटरनेशनल लॉ के बारे में भी एडवाइस देते हैं और हेल्प प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज जैसे अगर हम आज की जनरेशन की बात करें, आज के सिनेरियो की बात करें, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारी कंट्रीज आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हैं, बिजनेस करती है, ट्रेडिंग्स करती हैं। तो उनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, कोई सिचुएशन होती है, तो दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय ICJ। और वो कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्या लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, दैट आर बीइंग डिसाइडेड बाय ICJ, द वर्ल्ड कोर्ट। नाउ we will discuss the last organ of the UN, that is the Secretariat,
which is the most important organ of the UN. The Secretariat. It is the executive branch of the UN which looks after its day-to-day operations. एज हमने डिस्कस किया कि यूएन सिक्योरिटी का काम करती है, इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करती है या सोशल वर्क करती है या कॉलोनीज की ट्रांजिशन में हेल्प करती है या जो भी यूएन के मेंबर्स हैं उनके डिस्प्यूट सॉल्व करती है। तो ये सारा काम यूएन करती है, कहाँ करती है, कैसे करती है? तो जो सेक्रेटरिएट है वो यूएन की एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी भी काम को एक्शन में करना, प्लान रेडी होने के बाद उसे एक्चुअली करना, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। तो यूएन के जितने भी प्लान्स हैं, बजट्स है, सब है, उसको एक्चुअली एक्शन में लाना, दैट इज द वर्क ऑफ द सेक्रेटरिएट। इट लुक्स आफ्टर इट्स डे टू डे ऑपरेशन। यूएन के जो डेली ऑपरेशंस होते हैं, डेली वर्क्स होते हैं, वो ये सेक्रेटरिएट देखता है। द सेक्रेटरिएट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1945। इसे 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था। द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ सेक्रेटरिएट। सेक्रेटरिएट का जो हेड होता है उसे कहते हैं सेक्रेटरी जनरल। ही एक्ट्स एज द यूएन स्पोक पर्सन। वो यूएन, पूरे यूएन के स्पोक पर्सन के रूप में काम करता है। मतलब यूएन के बारे में अगर कुछ कहना है, उसका जो स्पीकर है, वो यूएन का स्पीकर कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल, हु इज द हेड ऑफ सेक्रेटरिएट। ही इज नॉमिनेटेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल and elected by the General Assembly for a period of 5 years. उसे नॉमिनेट कौन करता है? सिक्योरिटी काउंसिल। और उसे एक्चुअली इलेक्ट कौन करता है? जनरल असेंबली। जैसे हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं तो नॉमिनीज होते हैं ना, कि आपके पास 3 नॉमिनीज होते हैं, उनमें से किसी एक को आपको इलेक्ट करना होता है। सेम एज, तो जो सेक्रेटरिएट का जो जनरल सेक्रेटरी जनरल होता है उसे नॉमिनेट तो करती है सिक्योरिटी काउंसिल और उसे इलेक्ट करती है जनरल असेंबली। द सेक्रेटरिएट वर्क, द हेड ऑफ सेक्रेटरिएट, दैट इज सेक्रेटरी जनरल, ही वर्क फॉर द पीरियड ऑफ 5 years. See, you have given the secretary generals of the secretariat from the time when it was started, from 1946 to till date. सबसे पहले नॉर्वे से ट्रैगवे लाई, वो थे सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरिएट के। उसके बाद बहुत सारे आए एंड एट प्रेजेंट टुडे the present current secretary general of the secretariat is Antonio Guterres. He is the present, or you can say the current secretary general of UN. The secretary general plays a major role in planning the organization's agenda on international security affairs. तो जो UN का जो एजेंडा है उसकी प्लानिंग का सारा काम कौन करता है? सेक्रेटरिएट, और यू कैन से द सेक्रेटरी जनरल। दिस इज द लास्ट ऑर्गन of UN, that is the Secretariat. Here you have given one more infopable, that is Dr. Nagendra Singh of India was the president of the International Court of Justice from 1985 to 1988. डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद जो कि इंडिया से हैं, वो आईसीजे के प्रेसिडेंट रहे हैं फ्रॉम 1985 टू 1988. Second infopable is Dag Hammarskjöld is the only Secretary General to have died in office. He was killed in a plane crash in northern Rhodesia, that is now in Zambia. So he was the only Secretary General of the Secretariat who died in his office, who died during the tenure of his work. So these are the organs of UN that we have discussed.
6 मेन ऑर्गन्स है जिनके बारे में हमने पढ़ा है, एंड ऑन द basis of these, or you can say on behalf of these organs only, the UN work. Now in next video we will discuss about the specialized agencies of UN. Okay, बाकी की जो agencies हैं that we will discuss in our next video. Till then, bye.